मजेदार है। इवनिंग वर्जन डाला था, क्या क्या लगा आपको? एक्सक्यूज मी सर, वो फीवर में जो क्लीन कर रही है ना, माई सेल्फ डॉक्टर पूजा, वो मदर जो क्लीन कर रही है वो मार्क है एकदम, बस वही मुझे थोड़ा वही मुझे मार्क लगा बस। तो पूरा केस में क्या लग रहा है? ज्यादा ज्यादा मार्क क्या लग रहा है? उसका मदर को क्लीन करना, मदर को जो क्लीन कर रही है ना, पकड़ के बैठी है, जलसेमियम जैसा मिला है। और आपने उसी पे थोड़ा सा ये डाला है ना केस में, हमने उसी पे ज्यादा फोकस भी किया है कि बाकी सब लोग हैं, फिर भी घर में बाकी सब लोग हैं, फिर भी मदर को ही वो होल्ड क्लीन कर रही है, तो उसी पे फोकस करना चाहिए। हाँ, और वो क्या बोली जब होल्ड करती है, तब क्या बोली वो? जब वो अवॉइड करती है, मदर उसको अवॉइड करती है, इग्नोर करती है, तब वो बोलते हैं कि तुम मुझसे लव नहीं करती। हाँ, तो ये क्या हो? मे बी ये मैनिपुलेशन हो सकता है उसका, या फिर या फिर क्या वो मैनिपुलेट करता है ना, पल्सेडिले का वो होता है ना कि तुम मुझे लव नहीं करती, ये उस मैनिपुलेट करके माँ को अपने पास पकड़ के रखना चाहती है, ब्लैकमेल करना, सॉरी सर, ब्लैकमेलिंग है। अच्छा, at other times to the mother had to be near her but not necessarily holding her. जब वो बीमार नहीं रहती तो कैसे रहती है? सेकंड थॉट सर, वैनिला की जब जाता है। अच्छा, यस। और बस इतना ही। और कोई? भाई कुछ लोग न्यू ज्वाइन हुए, तो केस थोड़ा सा समराइज कर दो। केस नहीं पढ़ा है किसी ने? कुछ एक दो लोग पढ़े हैं, तो समराइज कर दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं केस पढ़ के बताता हूँ। A 13-year-old school girl had persistent fever even after 15 days of treatment. The fever was in the range of 101 to 104 degree Fahrenheit. It came in two bouts, one at night and one in the evening. At the onset of fever, the patient was observed shivering out of cold, which made her want to be covered. This was followed by rise of her body temperature. In both these stages, she wanted her mother to hold her close. This was following by sweating. When she asked to have covers removed and fan switched on, she drank large amount of water, but only in high temperature stages. Means she was thirsty in high temperature stages. She had very little appetite and preferred only cold sweets. Later, she was very sleepy and complained of weakness. Her bowels were not regular either. Her other complaints were painful mouth ulcers, severe pain in legs, which eased on application of pressure, headache, earache, pain in throat and cough with expectoration. Physical examination did not reveal anything except a coated tongue with mouth ulcer. Patient showed lack of interest in everything and only wanted to sleep. Investigations revealed malarial parasites in her blood smear. She was given anti-malarial treatment by her family doctor, chloroquine by injection and tablet. However, there was no relief and she was brought back for homeopathic treatment as she refused to take any more allopathic medicines. When asked how she felt, she replied, "I want my mummy to be with me. I like to lie down, resting my head on her lap." The mother stressed that her daughter wanted to be held closed when fever rise and got weepy if not held. Tears flow from her eyes whenever I tell her that she has grown up and should try to manage herself.
She then accuses me of not loving her and not caring for her. She also wants me to sleep near her. At other times too, the mother had to be near her but not necessarily holding her. Although there were other of her family members like her father, two elder brothers, but she insisted that only mother should give her medicines and attend to her. This behavior of her persisted throughout the illness. अभी आप कोई कोई पल्सेटिला बोल रहे हैं ना? हेलो, यस ये पल्सेटिला लग रहा है कि हाँ, सर ये जलसेमियम भी लग रही है, हो सकती है, बोलो क्या क्या सर? पल्सेटिला क्यों नहीं हो सकती है, बोलो। क्यों नहीं है सोचो ना, पल्सेटिला क्यों नहीं है सोचो ना। पल्सेटिला की माँ परेशान नहीं लगती, ये हाँ, तो माँ और ऐसी कंप्लेन कर रही है माँ इसकी, इसलिए हाँ, पल्सेटिला नहीं। और ये क्या बोल रही है, उसको माँ ही चाहिए, पल्सेटिला को कोई भी चलता है ना कैरी करने को। जो कोई लव अफेक्शन दे, पल्सेटिला विल क्लिंग टू दैट पर्सन, है ना, कोई भी चलता है ना। पल्सेटिला का तो मराठी में बोलते हैं वो माय मरो पण मावशी जगो, वो मार माय मरी मरो तो उसी जगह जिंदा रहना चाहिए, बिल्कुल। महामरी और इसलिए दिस इज नॉट पल्सेटिला। यस सर, समझे? यस सर, क्लियर? यस क्लियर सर, नो डाउट। अब वो सिकनेस में क्या करती है, माँ को छोड़ती ही नहीं है ना, सर प्लीज क्या एक बार लास्ट सेंटेंस मुझे प्यार रिपीट नहीं कीजिए ना। करती है। तो ये बीमार किस चीज से हुई है? Sir, can I say something? Why not? Sure, go ahead. Sir, I feel this child might be phosphorus Hmm. because the child wants affection. Hmm. Affection returns affection. It is affectionate also. However, it is not shown in this particular presentation. And this Hmm. child, it is found in the clinging children in and mother. Child clings to the hand of the mother. Child will always take the. Hmm. And there is one very interesting rubric like forsaken feeling is there, and forsaken feeling when, and she will feel not beloved when the mother doesn't smile at him. I mean, smile not only literally, but also when the mother is not catering to his or her needs. Like when mother is saying कि why don't you work on your own, तो उसको अच्छा नहीं लगता है. Hmm. तो यहाँ पे ये क्या कर रही है, फॉस्फोरस में एक रूब्रिक है, क्लिंगिंग ग्रास्पिंग एट अदर्स। Yeah. ये तो माँ को नहीं छोड़ रही है ना, फॉस्फोरस आउट हो गया यहाँ पे। Okay. क्लियर? Okay, sir. Yeah. ये बेबी लव सिक है, आपको लव सिक नहीं लगा, महसूस नहीं हुआ ये केस में? सर मुझे लगा हाँ, लव सर। सिक, मुझे एंटीम क्रूड का फील आया इसमें। यस, दिस इज एंटीम क्रूड हो सकती है। क्रूड एंटियम क्रूड है ये। हम्म। सर इसका क्या रीजन क्या था फीवर का? पहले कुछ था कुछ क्या ऐसे? रीजन कुछ नहीं था, मलेरियल फीवर है ना। सर मैं 1 मिनट कुछ बोलूं? ये तो एडाप्टेशन पे दिया हुआ रेमेडी है ना, पेशेंट का एडाप्टेशन देखो ना। अच्छा अच्छा, हर चीज में एलिमेंट्स आने चाहिए, ऐसा है क्या? हर केस में नहीं निकलते ना एलिमेंट्स। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर एलिमेंट्स के पीछे भागते जाएंगे तो केस कितना लंबा हो जाएगा फिर। हर चीज में हर पेशेंट नहीं बताता है ना एलिमेंट्स। एंटीम क्रूड में पेरेंट्स या जो आईपीआर रहेगा वो परेशान नहीं रहेगा, जैसे पल्सेटिला की माँ परेशान हुई रहती, वो उतना उसको उसकी सेवा में लगने के बाद में पल्सेटिला वुड हैव लाइक पूरा यूटिलाइज किया रहता माँ का प्यार, बट एंटीम क्रूड में थोड़ा फुलिशनेस रहता है। और मदर के बोलने में ऐसे कुछ महसूस नहीं हुआ, मीन्स शी इज लाइक ट्राइंग टू एक्सप्लेन हर कि तू बड़ी हो रही है, अब
you have to like खुद का काम behave खुद your करना चाहिए। behave हाँ yourself like that. सर सर इसमें एक रूब्रिक है ना, मदर्स एंड कॉन्स्टेंटली होल्डिंग क्लिंगिंग चिल्ड्रन इन मदर टू, तो सर उसमें एंटिम टार्ट है, एंटिम क्रूड नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हुई। फील तो मुझे एंटिम क्रूड का आ रहा था, बट इस रूब्रिक में एंटिम टार्ट आई तो मैं रुक गई थी सर। तो बराबर है। सर इस रूब्रिक में एंटिम क्रूड क्यों नहीं है सर? वो तो भी स्टॉलवर्ड्स ही बता सकते हैं। अशोक भाई बोल दीजिए। आवाज नहीं आ रही है सर। कैमरे सब मैक्सिमम लोग ऑन कर लें, क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वुमेन्स स्पेशल में हमें क्या दिक्कत जाएगी, तो कैमरा ऑन करेंगे तो हमें काफी प्रैक्टिकल हो जाएगा कि आगे कैसे करना है टेलीग्राम पे। तो मैक्सिमम लोग कोशिश करें कैमरा ऑन करने की। ओके सर। हेलो सर। हेलो। मैं सोची बहुत चेहरे आ जाएंगे इसलिए वापस मैंने कैमरा ऑफ कर दिया। ये अच्छा लगता है। या तो फील आ जाता है। हाँ, जैसे फैमिली जैसी फीलिंग आ जाती है। या श्वेता दीदी नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते सर। नमस्ते। अब लगा ना फैमिली जैसा। सीमा मैडम नमस्ते। मधु दीदी। हाँ सर, कंटिन्यू करिए। कैमरा ऑन रखिए। हाँ। रेशमा दीदी भी आ गई हैं। चलो शोभा, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। अब लगा फैमिली है। तो मेरे को अनपिन कौन कर रहा है? मैं खुद को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे को अनपिन कौन कर रहा है? ये नहीं कर सकता ये सर। हाँ। ऑल लेडीज। अरे होम्योपैथी में लेडीज और बहुत जोरदार है। आप खुद पिन कर लीजिए। हाँ कर दिया अभी। चलिए अभी समझ में आया वो। हाँ। लव सिक का डेफिनेशन दिया है। लव इज अ फीलिंग ऑफ वार्म पर्सनल अटैचमेंट और डीप अफेक्शन फॉर अ पेरेंट, चाइल्ड, फ्रेंड और अ पर्सन ऑफ द अपोजिट सेक्स, deeply affected with some unhealthy feeling as from a disease is a sick। तो ये लव सिक का डेफिनेशन है। इन दिस गर्ल a strong desire to be with her mother all time predominated and had persisted throughout her illness। और उसको जब टच करते थे तो वो रोती थी, तो सेकंड रूब्रिक था वीपिंग टच्ड वेन एंड कैरिड डिजायर टू बी कैरिड। ऑन द बेसिस ऑफ अबाउट 3 rubrics एंटियम क्रूड 30 was given। After 1 dose she slept for 4 hours and after that she had no medicine। her temperature lowered, her appetite got better now। बढ़िया। And this is not my case, sir. Basic. It is from Sehgal sir's desk। गुड। सहगल सर की केस है। सहगल सर की केस है ना ये? हाँ, yes। In previous years of practice when आर Yes। सीरीज स्टार्ट करने से पहले सर को एक्सपीरियंस हुआ था, सो ये एंटीम क्रूड के लिए रूब्रिक्स लिए थे उन्होंने। हेलो क्लिक करिए ना। किया यार। हाँ आ रहा है आवाज। लगा कि वो बच्चा गोद में आना चाह रहा है और वो मतलब लड़की, और वो ऐसे मतलब चाहती है कि माँ के रहे, तो वो इसमें एक रूब्रिक भी आ रहा है ना कि कैरिड डिजायर टू बी कैरिड सूद एंड। हाँ में है ये सूद वाला। हाँ यस।
क्लोज डीडी मुझे लग रहा था इस केस में जल्सीमियम, हाँ भाई बिकॉज जल्सीमियम का क्लोज डीडी लग रहा था, बिकॉज हेल डिजायर तो है नहीं, आवाज एंड नहीं आ रही, मत सेकेंड करो। इज टॉर्पर था उसको, सीवियर वीकनेस नहीं ड्यू टू नहीं फीवर। नहीं, तो मुझे जल्सीमियम का क्लोज डीडी लग रहा था, बिकॉज ओके फ्रिक्वेंटली वी यूज जल्सीमियम इन सच अ टाइप ऑफ फीवर्स। लेकिन जलसेमियम को फियर लूजिंग ऑफ कंट्रोल भी रहता है, जलसेमियम का बच्चा हिलता नहीं जल्दी। Yes, that's why she is holding her mother, no? If we come for DD, then we have to thought this, she want to hold her mother or somebody else. तो this is hell desire plus prostration, या torpor लिया तो जल्सीमियम भी आ सकता है, लेकिन touch aversion और weeping on touch and carry desire to be carried एंड लव सिक लिया तो एंटीम क्रूड ही आएगा चार्ट में। जरा जाकर आना 5 मिनट। सर मेरी क्वेरी है, पूछूं? बोलो। एक सिंगल रूब्रिक है सीपिया का कि जब बीमार होती है बच्चा या बच्ची तो माँ को क्लीन करते हैं, तो अदरवाइज नहीं करेंगे और सिकनेस में ही करेंगे तब ये रूब्रिक लेंगे। हाँ, तो वो क्लीन कर रही तो वो रूब्रिक कोर रूब्रिक है सेपिया का, ध्यान में रखो। उसको सिर्फ ऐसे ही नहीं फिजिकल्स पे लगा सकते, उसका मेटाफोरिकल मीनिंग रहेगा। कोर रूब्रिक है वो उस रेमेडी का। सर ये बच्ची को है ना कैरिड डिजायर तो कैरिड एंड सूटेड करके रूब्रिक है ना, उसमें एंटीम्यूनियम क्रूड है। क्या बोले सर? सर कैरिड डिजायर टू बी कैरिड एंड सूटेड करके एक रूब्रिक है ना, जैसे उसको प्यार चाहिए मम्मी का, जैसा लैब पे लेटना है, सूट करना है उसको। उसमें मैं देखता हूँ। ओनली मेडिसिन है उसमें, अभी बोला हम लोगों ने ये बात। हाँ ये बताया ना आपने, मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा, म्यूट पे था, ये रूब्रिक याद आया मुझे, मगर फिर अशोक भाई को कॉल किया मैंने, तो फिर अभी कुछ सेटिंग हुई है। जैसे आपने बताया ना अपना लव सिक थी ये क्या कर, इसका एडेप्टेशन कैसा था, मम्मी पास में चाहिए और गोद में ही सर रखना है, लैप पे रखना है इसको, मम्मी से लाड चाहिए था इसको। बराबर। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? क्लिंगिंग में आपको पकड़ा जाता है ना, तो आपके ऊपर प्रेशर आएगा ना। क्लिंग करते तो पकड़ते ना, हम कंफर्टेबल नहीं रहेंगे क्लिंग पोजीशन पे, कंफर्टेबल नहीं रहेंगे ना। आपको अगर पकड़ा हुआ रहेगा, बच्चे ने ऐसा पकड़ के रखा तो कैसा लगेगा? बंदर का बच्चा कैसा क्लिंग करता है माँ को, छोड़ता नहीं है ना वो। फियर फैक्टर रहेगा, फियर रहेगा तो चिपकेगा, वो देखने से पता चलेगा। हाँ, क्लिंगिंग में थोड़ा फियर भी रहता है ना, यहाँ पे फियर नहीं था। क्लिंगिंग में आईपीआर की इरिटेशन होता है, क्योंकि उसका पूरा प्रेशर या जोर हम आईपीआर पे डालते हैं। रेशमा जी एंटीम क्रूड का कोड बता दो, मैक्सिमम को मालूम है। कोई आवाज कट गई क्या? रेमेडी का कोर रेमेडी का कोर एंटीम्यूनियम क्रूड का नहीं, लव सिक तो है, तो एक है, लव कंफर्म है ये लव सिक। कुछ और इसके एंटीम क्रूड के बारे में कोई बताएगा? इसमें डिसअपॉइंट लव है कि वो दुखी होता है, उसके बाद डिजायर टू मेक वर्ड्स इन पोएम भी है, मतलब उसी की याद में खोया रहेगा। और मून वाला एक रूब्रिक है एंटीम क्रूड में, कुछ मून से रिलेटेड, मतलब
लाइफ में उसको ज्यादा डिप्रेशन फील होता है। एंटीम क्रूड का खूब इमोशनल होता है। एंटीम क्रूड इमोशनल होते हैं। एंटीम क्रूड लापसिक का साथ बच्चा का रिलेशन नहीं होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ एंटीम क्रूड का। कोर मैंने बता नहीं सकता। कोई सपोज लड़का नौकरी करता है, उसको शादी भी हो गया, एक बच्चा भी है, लेकिन फादर मदर सपोज कि दूर में दिल्ली में रहते हैं और लड़का बॉम्बे में नौकरी करता है, वहीं रहते हैं। तो छुट्टी में तो घर आते हैं, तो वो तो नाना नानी क्या करेगा, वो बच्चा को लेके 7 दिन छुट्टी मनाएंगे, बहुत मिलजुल हुआ, प्यार हुआ। जब चला जाएगा लड़का, वो नाती चला जाएगा, तब वो उसका नाना नानी बीमार पड़ जाएगा। यही हुआ लाभ सीख। जो लाभ नहीं मिल रहे हैं तब जाके वो सीख पड़ेगा। यही हुआ लाभ सीख। माँ का साथ बच्चे के ऐसा नहीं होगा। हेलो, हाँ अशोक सुना? हाँ बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, तो इसका एंटीम क्रूड का ये कोर नहीं है, क्योंकि ऐसा खूब कम ही मिलेगा आपको। ऐसा चीज मेरे को एक मिला था, तो इसलिए ये कोर नहीं, कोर अलग चीज है। वो एंटीम क्रूड ऐसे कम यूज होता है, मेरे पास तो बहुत कम है एंटीम क्रूड का। एंटीम टार्ट तो बहुत मिलते हैं, एंटीम क्रूड है इमोशनल रहते हैं, और इमोशन लेके उसका बहुत सारे रूब्रिक्स है। मून लाइट, सपोज कि वाइफ उनके अभी दोनों का उम्र हो गया, हस्बैंड को उम्र धरी 60, वाइफ कुछ दिन हुआ कि वो डेथ हो गया, तो तब सोचने लगेगा कि अरे भाई मैं शाम को बैठता था यहाँ पर, उन्होंने मेरे को चाय लाके देते थे, अभी तो कोई नहीं है चाय देने का। तब वो इमोशनल हो जाते हैं और धीरे धीरे बीमार पड़ जाते हैं। तो ये बात को वहां से उनसे निकालना भी बहुत मुश्किल है। पेशेंट्स डॉक्टर के पास आके तो कोई नहीं बोलेगा ऐसा बात। आप धीरे धीरे अंदर घुसोगे पेशेंट के अंदर, तो ये बोल सकते हैं ये अभी उम्र हो गया, डेथ हो गया वाइफ का, अभी मेरे को कोई लाभ नहीं मिल रहा है ऐसा पहले जैसे मिलते थे। ये हो गया लाभ सीख। एंटीम क्रूड का एक केस। हेलो, मैंने समझा पाया मैंने जो बोला जी, अच्छा लगा? हेलो, हाँ राइट, बहुत बढ़िया सर। बोलिए रेशमा जी। मानिक सर सैड मेलंकोलिक मूड इन मूनलाइट था ना, हम हमेशा मटीरियल अमेरिका में पढ़ते थे। मानिक सर, हाँ बोलिए। एक तो ये जो बच्ची थी जो कंप्लेंट लेके आपके पास आई थी, तो ये कैसी सैडनेस थी क्या? मतलब गाय और सर जी हाँ, ये मेरा केस नहीं है, सहगल सर का केस है, उनके डेस्क पे है। जी मैं समझा कि आपका सर इसमें एक रूब्रिक है, सिंगल रूब्रिक है, सैडनेस ड्यूरिंग फीवर, ड्यूरिंग इंटरमिटेंट फीवर। अच्छा, उसमें एंटीम क्रूड है। हाँ, सिंगल ही रेमेडी है, सैडनेस ड्यूरिंग फीवर, ड्यूरिंग इंटरमिटेंट फीवर। गुड, वेरी नाइस रूब्रिक। सिंगल है। की बात अधूरी रह गई थी। सिंगल ठीक है, रेशमा दीदी की बात अधूरी रह गई थी, बोलिए मैडम। हाँ बोलिए ना, लाउडली। छोटा सा केस। तो एक छोटा बच्चा उसके घर में, लाइक काऊ और काऊ का बच्चा, मतलब काफ एंड काऊ ऐसे थे। एंड एक दिन क्या हुआ, वो छोटा बच्चा ही यूजुअली फेड दैट काऊ को खिलाता था, और उसके छोटे बच्चे को भी बहुत प्यार करता था, मतलब पूरा दिन उसके साथ ही रहता था बच्चा, गाय के बच्चे के साथ। तो एक दिन क्या हुआ, वो छुट्टी थी, तो वो अपने नाना नानी के पास गया। जो बच्चा था वो अपने नाना नानी के पास गया, और सेकेंड डे से व्हाट हैपेंड कि वो गाय का जो बच्चा था वो कुछ खाना पीना ही
उसने छोड़ दिया, मतलब बहुत उसको प्रॉब्लम चल, उसने कुछ खाया नहीं, सब हुआ, उसको सलाइन लगाई, डॉक्टर के पास लेके गए। तो हमारे मतलब एक होम्योपैथ है, अभी उनका नाम मुझे नहीं याद है, उन्होंने शेयर किया था। तो उन्होंने उसको एंटीम-क्रूड दिया था, वो गाय के बच्चे को, काफ को एंटीम-क्रूड दिया था लवसिक रूब्रिक लेके, क्योंकि हर दिन वो छोटा बच्चा उसको फीड करता था, प्यार करता था, पूरे दिन उसके साथ रहता था। और सडनली वो अपने नाना नानी के पास गया तो वो बच्चे को देख नहीं सकता, उसके साथ नहीं खेल सकता था, तो वो गाय का बच्चा ही बीमार पड़ा, तो एंटीम-क्रूड दिया लवसिक के रूब्रिक पे, और उसके बाद वो गाय का बच्चा ठीक हुआ, मतलब खाना खाने लगा, सब नॉर्मली बिहेव करने लगा था। मतलब ये याद आएगा बच्चा मतलब ये बच्चा गाय के बच्चे की माँ बन गया था। यस यस यस। और वो जो प्यार मिलता था ना वो छोटे बच्चे से, वो तो मतलब दिस इज द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। दोनों तो बात नहीं कर सकते, लेकिन दैट इज इमोशन एंड दिस इज द सबकॉन्शियस लैंग्वेज ऑफ आवर माइंड। तो वो समझ गया कि अभी कुछ नहीं है, मेरा तो जो पालनहार है वो गया, एंड ही बिकम लव सिक, वो छोटा काफ गाय का बच्चा। फिर सर ने उसको ये दिया था, एंटीम-क्रूड दिया था। तो मतलब हम लोग वेटरनरी में भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। मैं कुछ बोलूं सर? हाँ बोलिए। सर ये बहुत अच्छी रेमेडी है लव डिसअपॉइंटमेंट के लिए, और इसका जो रिएक्शन होता है ना वो एंगर टच्ड वेन है, तो जहाँ हम लेकेसिस सोचते हैं ना वहां पर एंटीम-क्रूड भी आ सकता है, बिकॉज इसका जो रिएक्शन होता है ना वो विपिंग टच्ड वेन, एंगर टच्ड वेन होता है। तो जनरली अगर ये दो रूब्रिक क्लब करते हैं ना तो लेकेसिस आती है डिसअपॉइंटमेंट लव के केसेस में, पर हम वहां पर एंटीम-क्रूड भी सोच सकते हैं। हाँ, लेकिन वन बिग डिफरेंस इज लैकेसिस इज ऑलवेज जेलस एंड हेट्रेड टुवर्ड दैट पर्सन। जो प्यार में डिसअपॉइंटमेंट लिया है तो ऑलवेज लैकेसिस इज इन जेलसी, सस्पिशियसनेस एंड हेट्रेड टुवर्ड, मतलब ही मे स्टैब आल्सो, बट एंटीम-क्रूड लैंड क्या हो जाता है ड्यू टू लव सिक, ये मोरोस फीलिंग में, एमोरस लव इन मूनलाइट में जाता है। मतलब मूनलाइट का जो सॉफ्ट एंड जो सन मतलब रेज रहता है, लाइट रहता है, तो ही गोज इनटू उसमें ही जाएगा। लेकिन लैकेसिस मौका मतलब ढूंढेगा कि या मैं कुछ कर सकता हूँ, जिसने मुझे धोखा दिया, डिसअपॉइंटेड इन लव में जाके। तो ये बहुत फाइन डिफरेंस है एंटीम-क्रूड एंड लैकेसिस में, मतलब हम लोग वो रूल आउट कर सकते हैं ड्यूरिंग केस टेकिंग। यस मैम। वो मतलब आगे की जर्नी और जो पूरा पिक्चर है वो तो बिल्कुल हाँ, उसके से डीप रूब्रिक्स हम लोग नहीं उनको वही बार बार पूछेंगे एंटीम-क्रूड को, तो वो एंगर में जाएगा या वीपिंग में जाएगा। मतलब इमोशनली हम लोग ऐसे डायरेक्टली पूछते हैं कि ये अरे क्या हुआ, तो पेशेंट स्टार्ट वीपिंग, दैट टाइम वी टेक दिस रूब्रिक ना, वीपिंग टच वेन, मतलब उसको जो वीकनेस है उसकी इमोशनल साइड पे हम लोग टच करते हैं या पूछते हैं, तो पेशेंट स्टार्टेड वीपिंग, दिस इज वीपिंग व्हेन टच वेन, मतलब मेटाफोरिकली हम लोग लेते हैं तो टच वेन। मैंने भी किसी का सुना हुआ था कि एक जो पर्सन थे उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी, तो बच्चे बहू थे, बेटा बहू थे, तो वो अच्छे से उनकी केयर करते थे, सब कुछ था, लेकिन वो जो पर्सन थे वो सेटिस्फाई नहीं होते थे। वो ये कहते थे कि जैसा मेरी वाइफ करती थी ना वैसा तुम लोग नहीं कर पा रहे हो, मतलब जैसे वो मुझे खिलाती थी, जैसे वो मुझे केयर करती थी, जैसा वो मेरे हर चीज को समझती थी, वो चीज तुम मुझे नहीं कर पा रहे। तो उसमें एक रूब्रिक था, स्पेशली वाइफ को लेकर एक रूब्रिक है एंटीम-क्रूड का, कि शायद सर्चिंग वाइफ, मतलब कुछ अभी मुझे वो याद नहीं आ रहा, वही मैं ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तो वो उसमें वो लव सीक वाला था, और वाइफ का जो वो पर्टिकुलर रूब्रिक है वो अगर मुझे ध्यान आएगा तो मैं टैले पे डालूंगी, तो अच्छा रूब्रिक है उसका। तो वो केस था एक इसमें कि वो
अपना वाइफ वाला जो लव है, जो उसको उससे मिलता है, वो सब में वही ढूंढता है कि वो चीज नहीं मिलती तो वो डिससेटिस्फाइड रहता है। एंटिम क्रूड की पूरी जर्नी पढ़ते हैं, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और मानिक सर को ही पकड़ के पढ़ेंगे। सीमा मैम, वो जो आप रूब्रिक कह रही थी वो है माइंड डिजायर्स फुल ऑफ डिजायर आइडियल वुमेन। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैडम, थैंक यू, थैंक यू। हर चीज में अपनी वाइफ से कंपेयर करता है। वो बेटा उसको हर चीज लाके दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं है, उसको वही चीज चाहिए जो उसकी वाइफ से मिली थी। गुड। मतलब they are dependent on they are a dependent personality I think, because ये सब रूब्रिक्स क्लास करेंगे हम लोग तो ये देखो कैरी भी है, क्लिंग, हेल्ड भी, डिजायर है, और ये अभी मैम ने रूब्रिक बोला तो ये तो पूरा एक पर्सन पे डिपेंड हुआ, ऐसे पर्सनालिटी लगती है ना। लव सिक में पर्सन को लव चाहिए भी उसके ही तरीके से, जैसा वो चाहता है ना उसी तरीके से उसको। जैसे ये बच्चा चाहता है ना कि मदर मैं इस तरह से सिर रखूं, इस तरह से मदर मुझे ऐसे हाथ फेरे, तो वो जो तरीका वो चाहता है ना, जैसा वो चाहता है वैसा मिले। जैसे ये आइडियल वुमन वाला जो रूब्रिक है ना, तो मतलब वो हर किसी से एक्सपेक्ट करता है कि जैसा वो करते थे वैसा ही मुझे अब मतलब वो करे, और उसमें वो सेटिस्फाइड नहीं होता है। Antim crude is actually very attached to one particular person, और इसीलिए कोई और उसको अप्रोच करना चाहे तो वो टच एवर्जन 2 में चला जाता है, मोरोस में चला जाता है। एंड टच मी नॉट टाइप कहते हैं इसको, क्योंकि बच्चे दे डोंट इवन लाइक टू बी लुक्ड एट। एंगर टच्ड व्हेन हो जाता है, एंगर टच्ड व्हेन एंड दे बिकम टैसिटर्न एंड टच एवर्जन 2 में है, बट दे वांट लव ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन whom they want the love from। मतलब दूसरा कोई करने जाए तो उनको ऐसे लगता है कि वो जो आइडियल लव था ये लोग कर रहे हैं, ये नकली है, ये कुछ नाटक कर रहे हैं, ये दिस इज ऑल फेक। This is also the pulsatilla will derive love, she will suck blood from love from any source, and phosphorus भी same वही होता है कि जहां जाएगा वहीं का ही हो जाएगा। और एंटिम क्रूड वो पर्टिकुलर पर्सन को नहीं भूल सकता, उसको वही चाहिए, उसको प्योर लव चाहिए, इधर उधर का नहीं। जैसे मैडम ने बताया, सीमा मैडम ने, कि उसको केवल अपनी वाइफ जैसा ही चाहिए। गुड। ऐसे एंटिम क्रूड के लिए हम लोगों ने जो क्लासिकल के टाइम पे पढ़ा कि वो चंद्रमा को देखकर कल्पनाएं करना, और वो जो एक होती है ना लवर, मतलब हम लवर मेडिसिन भी बोलते हैं कि भाई कुछ लड़के लोग या लड़की लोग किसी के लव में पड़ गए और फिर उनके हिसाब से वो सेंटिमेंटल। तो जो माइंड में इसका जो एक रूब्रिक है ना, वो एक माइंड में रूब्रिक भी दिया हुआ है कि सेंटिमेंटल ट्विलाइट, ये ऐसा करके माइंड का रूब्रिक भी है जो हमने जनरली उसमें पढ़ा हुआ है। हम लोग ना माइंड में पढ़ती हूँ, माइंड के ये रिलेटेड विथ लव, माइंड अमोरस डिस्पोजिशन मूनलाइट एग्रेवेट, देन माइंड एक्टसी नाइट वॉकिंग इन मूनलाइट, माइंड इंसैनिटी मैडनेस वॉकिंग इन मूनलाइट एग्रेवेट, माइंड लव exalted moonlight in, mind sentimental moonlight in ecstasy love। एंटिम क्रूड 4 मार्क्स के लिए। लाइट एग्रेवेट मूनलाइट, ये इतने सारे मूनलाइट के रूब्रिक्स है एंटिम क्रूड के। एंटिम क्रूड को सेंटिमेंटल बताया है, तो सेंटिमेंटल के सिंगल रूब्रिक है एंटिम क्रूड के ही, कि सेंटिमेंटल डायरिया ड्यूरिंग, सेंटिमेंटल मेंसेस बिफोर, सेंटिमेंटल मूनलाइट इन एंड सेंटिमेंटल ट्विलिट। हाँ मतलब तो सूदिंग इफेक्ट देते हैं ना हम लोगों को, वेरी सॉफ्ट एंड सूदिंग इफेक्ट।
तो एंटीम क्रूड को वही चाहिए कि मुझे कोई ऐसे कैरी करे, सूट करे, अच्छा सा देखे। इसके लिए इतने सारे उसके मूनलाइट और इक्टसी के रूब्रिक्स है, इसमें सब नाइट के ही रूब्रिक्स है। लेकिन एमोरस भी है, ये एमोरस डिस्पोजिशन में है, मतलब कंटिन्यूअसली ही विल लुक फॉर लव। मतलब जैसे उसको लव चाहिए, जो अभी तक अपन ने पढ़ा वो उतना लव के लिए सेंटिमेंटल है, उसी तरफ दूसरी तरफ वो अगर ये चीज नहीं मिलेगी तो सैड होना, डिसअपॉइंटमेंट होना, ये सब उसका सेकंड फेज रहेगा कि भाई जो आपको चाहिए वो नहीं मिलेगा तो नेचुरल सी बात, एडाप्टेशन रहेगा। एंटीम क्रूड का एक केस में शेयर आएगा या सैडनेस। एक एक करके बोली दोनों चुप हो गए, बोली। दिस इज डॉक्टर वैशाली। तो एक केस था जो चाइल्ड को ना, और एक्जिमा था एक्चुअली, स्काल्प पे हो रहा था एंड ऑन हिज प्राइवेट पार्ट्स बहुत ज्यादा एक्जिमा था। तो द प्रॉब्लम हैड स्टार्टेड कि जब से उसका छोटा भाई जैसे आफ्टर हीज बर्थ होनी ये स्टार्ट हुआ था। तो इनिशियली आई गेव हिम इग्नेशिया बिकॉज दैट न्यूबॉर्न का जो एक के अफेक्शन है उसके हिसाब से, एंड फॉर विद दैट मेडिसिन थोड़ा सा उसको हेल्प हुआ, बट आफ्टर 2-3 months अगेन इट ट्रिगर्ड। और एवरी टाइम बिकॉज ये बच्चा जैसे और अभी जस्ट व्हाट यू डिस्कस ना कि लैकेसिस तरह एक वाइवेसिटी भी है, मीन्स हिज लुक वाज लाइक दैट, एक वाइवेशियस भी है, एक अच्छे से है, लाइक मोर ऑफ फॉस्फोरस लैकेसिस वगैरह, बट एंगर बहुत ज्यादा था। एक बार ऐसा हुआ कि लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम इसका जो भी मैं मेडिसिन दे रही हूँ ये अच्छे से नहीं हो रहा था। तो एक बार मम्मी ने बताया कि मैडम इसको इतना हम लोग प्यार देते ना कि लेकिन वो सेटिस्फाई ही नहीं होता है। तो आई वाज लाइक मे बी पल्सेटिला दिया, सैकुरम दिया, बट इट वाज नॉट एट ऑल हेल्पिंग। तो एक बार ऐसा हुआ कि वो गिर के आया था एंड इट वाज अ वेरी माइनर इंजुरी। तो वो बैठा था सोफा पे, मम्मी ने बोला कि चलो उठो, इतना तो नहीं लगाया है तो उठ के काम करो, फिर से जस्ट गेट इनटू द वर्क करके। तो ये मम्मी को बोला कि एटलीस्ट एक प्यार से एक शब्द तो बोल देती ना कि ठीक है, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, ऐसा तो बोलो। मम्मी को ना इतना भी एक अफेक्शन नहीं है करके मम्मी को एक गुस्से से बोला। दैट डे अगेन द प्रॉब्लम ऑफ हिज इचिंग एंड ऑल हैड इंक्रीज। ऑन दैट बेसिस आई हैड गिवन हिम एंटीएम क्रूड के इसको ना कि सेटिस्फेक्शन ही नहीं हो रहा है, एंड ही वाज एक्सपेक्टिंग हिज लव फ्रॉम मदर ओनली, एज यू आर सेइंग दैट आइडियल वुमन ना। तो even that ideal woman can be wife, and I think even can be mother also or sister also, from whoever they are more attracted. So वो एक केस, और एंटीएम क्रूड के विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एक्जिमा बहुत क्लियर हुआ था, विच वॉज क्वाइट अ प्रोलॉन्ग फॉर ऑलमोस्ट मोर देन 8 to 9 months। और वो इग्नेशिया से हाफ ही हेल्प हुआ था, मे बी जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। वो एक था कि सेकेंड बेबी बॉर्न होने के बाद में उसको स्टार्ट हुआ था, ऑन दैट बेसिस आई हैड गिवन हिम इग्नेशिया, बट एक्चुअली इट क्लियर्ड आफ्टर एंटीएम क्रूड। और एक केस सिमिलर था जहाँ पे दिस बॉय वाज ऑलवेज गेटिंग कोल्ड कॉफ और फीवर एंड विजिंग विथ काइंड ऑफ स्किन का एक ड्राइनेस होता था, और इट वाज मोर ऑफ लिप्स का क्रैक्स वगैरह। फॉर हिम आई वाज गिविंग पल्सेटिला, बट पल्सेटिला हेल्प नहीं हो रहा था, बट वंस आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम पार्शियली ही हेल्प हो रहा था। देन सिंस दैट रिपीटेशन वाज देयर, एक बार ऐसे हुआ कि ये मम्मी का एग्जाम्पल और एक है कि क्रिसमस के टाइम पे मैंने उसके फ्रेंड्स को बुला के केक खिलाया। तो दिस बॉय रादर देन थैंकिंग मी कि मम्मी आपने मेरे फ्रेंड्स को बुलाया, आई एम हैप्पी अबाउट यू, इसने बोला, मीन्स एक गुस्सा मम्मी के तरफ कि अभी क्या आप सबकी माँ बनने वाली हो, मीन्स देयर वाज नो दैट एक्सेप्टेंस और एक रूडनेस था। तो ऑन दैट बेसिस अगेन आई लाइक ना, मम्मी का अफेक्शन तो चाहिए बट उसके तरीके से चाहिए। ही वॉज नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड, and other elements were there where he had lost his grandparents and all, वो जो अफेक्शन कम हुआ था, बट मम्मी से और चाहिए था उसको। तो on that basis एंटीएम क्रूड हैज आई हैव गिवन हिम, उसका विजिंग पूरा सेटल हुआ है, एक्जिमा हैज क्लियर्ड, ड्राइनेस ऑफ द स्किन एंड ऑल हैज क्लियर्ड। अभी भी मीन्स एनी एक्यूट सिम्टम्स एंटीएम क्रूड ही हेल्प होता है। So that is how it is, love, sickness and all these things, ideal women का affection, those all things are clear in this case. Very nice, very nice. Thank you. Thanks for sharing.
थैंक यू। बहुत और बढ़िया। मैडम कैमरा ऑन नहीं था। कैमरा ऑन कीजिए, जिसको बोलना है वो कैमरा ऑन कीजिए। बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया आपने, बहुत बढ़िया केसेस थे। कौन बोल रही थी मैडम? सर मैं वैशाली पोपले हूँ फ्रॉम बैंगलोर। बहुत अच्छा बताया मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू। ये एक रूब्रिक है डिसकंटेंट चिल्ड्रन, उसमें एंड इंक्लूड थर्ड पॉइंट 3 ग्रेड में टॉप ग्रेड पे है। तो डिसकंटेंट यानी असंतुष्ट चिल्ड्रन, यानी ऐसा आदमी जो अभी भी दिमागी रूप से बड़ा नहीं हुआ है, चाइल्डिश है। तो कितना भी प्यार मिल जाए, इसको प्योर लव चाहिए, ये सब जो बता रहे हैं, ये एक चीज यदि हम दिमाग में रख लें कि प्यार चाहने वाला और असंतुष्ट बच्चा, तो एंटी इंक्लूड की पूरी पिक्चर खड़ी हो जाएगी, सारे रूब्रिक आपके सामने आने लगेंगे और वो क्लियर हो जाएगी रेमेडी आपकी। डिसकंटेंट चाइल्ड, भले बड़ा हो, भले उम्र में बड़ा हो, वाइफ की डेथ हो गई हो, लेकिन वो चाइल्डिश बिहेव करेगा, ऐसा बिहेव करेगा जैसे चाइल्ड हो, और वो संतुष्ट नहीं होगा किसी से भी। जो पर्टिकुलर चीज चाहिए वो चाहिए। रूब्रिक क्या है परफेक्ट हो? डिसकंटेंट चिल्ड्रन, एंटी इंक्लूड चिल्ड्रन हाँ, तो डिसकंटेंट चिल्ड्रन के अंदर मतलब वो अनसंतुष्ट बच्चा है। यस। हाँ, और आपने कुछ दूसरा वर्ड बोला तो वो थोड़ा सा बराबर समझ में नहीं आया। जैसा बड़ा होएगा, जैसे यंग हो जाएगा। हाँ, एजेड भी है, उसकी वाइफ खत्म हो गई, 60 एबव भी है, लेकिन उसका बिहेव चाइल्डिश हो रहा है ना कि वाइफ जैसा प्यार चाहिए, तो मेरी वाइफ जैसा नहीं बना के दे रही हो अभी भी, जैसा वो देती थी। नहीं तो वो तो सर चाइल्डिश बिहेवियर में आ जाएगा ना रूब्रिक। डिसकंटेंट चाइल्ड, हाँ, ये चिल्ड्रन है। डिसकंटेंट मतलब ये बच्चे जो है वो संतुष्ट नहीं होते। बच्चे जो है एक एज लिमिट रहती है ना बच्चों की। तो फिर जैसा इन्फेंट हो गया, चाइल्ड हो गया, फिर बाद में अडल्ट में आ जाता है, फिर ओल्ड में आ जाता है, ऐसा है ना सर? ये चिल्ड्रन के लिए रहेगा शायद मेरे हिसाब से। तो नहीं, ये तो चिल्ड्रन बड़े लोग भी एज ए चिल्ड्रन बिहेव करते हैं, तो जब वो चाइल्डिश बिहेव करे तो हम वहाँ बड़े को भी चिल्ड्रन जैसे इस रूब्रिक में ले लेंगे। जी। और एक और रूब्रिक है चिल्ड्रन विद डिसकंटेंट विद एवरीथिंग करके, बड़ा रूब्रिक है। गुड। वो जैसा मैडम ने बताया, जैसा उसको चाहिए वैसे ही चाहिए। जी सर बहुत बार बच्चे बोलते हैं ना, मुझसे प्यार से बात करो, मुझे डांट के बात मत करो, मेरे से अच्छे से बात करो, बस प्यार से ही बोल दो, लव यू बोल दो। तो हम जनरली पल्सेटिला और सैक्रम सोचते हैं, वहाँ कैरिड डिजायर टू बी कैरेज्ड में है ये मेडिसिन, पर अगर ये मेडिसिन वर्क नहीं करती है तो हम वहाँ पे एंटी इंक्लूड भी सोच सकते हैं। सोचना चाहिए, सही बात है। अभी ये सर ने, महादिक सर ने जो केस बताया उसमें भी वही कि मुझे लव यू कहो, ये कहो, मतलब उसका तरीका ही वैसा होता है। बट इस रूब्रिक में भले ही ये मेडिसिन नहीं है, बट ये मेडिसिन ऐसे केसेस में काम करती है। मगर इसके रूब्रिक भी है ना, कैश बीन एवर्जन टू, कैश विद एवर्जन टू इन चिल्ड्रन करके। मगर ये कैरिट्स के अंदर अच्छा है, कैरिट डिजायर टू बी कैरिट, कैरिट डिजायर टू बी एंड सूटेड करके रूब्रिक है, उसमें सिंगल है वो। ये दूसरों से शायद नहीं, पर्टिकुलर से, अब जैसे सर ने बताया था ना, पर्टिकुलर मदर ही चाहिए उनको। सर चाइल्डिश बिहेवियर के अंदर भी है अशोक सर जी। हाँ, रहेगा ही ना, रहेगा, बढ़िया। तो मीटिंग, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, प्लीज प्लीज। एक केस में ये था कि एक मतलब यंग ही लड़का था, उसको वैसे माँ से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जब वो बीमार पड़ा ना तो उसको माँ ही चाहिए थी। वो माँ की ही बातें करता था, माँ की याद आ रही है, माँ ये माँ है वो। तो अक्सर ये जो रूब्रिक है ना आप जो बता रहे हैं सब, वो कि पर्टिकुलर पर्सन से वो अटैच होगा, यानी हस्बैंड है तो वाइफ चाहिए उसको, या कोई बच्चा है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको माँ चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक पर्सन के पीछे ही, मतलब क्योंकि उनसे ही उनको लव मिलता है, या जिससे भी उनको लव मिल रहा होगा ना वो उसी पर्सन की डिमांड करेंगे, स्पेशली ड्यूरिंग सिकनेस। अदरवाइज वो चाहे उनको पूछे या नहीं पूछे, उससे मतलब नहीं है। गुड। और मानिक सर ने एक चीज और बताया था, बच्चा कंप्लेंट करा था ना कि तुम लोग मुझे प्यार नहीं करते।
हाँ बराबर। करके रूब्रिक है, कंप्लेनिंग करके रूब्रिक है, उसमें भी 2 मार्क्स में है रेमेडी है। और हम लोग थोड़ा सा पल्सिटिला पे इसलिए चले गए थे कि इमोशनली ब्लैकमेल करके वो सोच रहे थे। कंप्लेनिंग चिल्ड्रन इल, हाँ वो कल से कंफ्यूज तो कर सकता है ये। क्या मैडम? एंटी इंक्लूड में कुछ चीजें कंफ्यूज तो कर सकती है, जैसे बोले ना कि प्यार से करो और लोन फीलिंग है और जो भी कुछ है डिससेटिस्फैक्शन है तो फ्लैटरी कर रहे हैं या जो भी है, तो वो ऐसे कंफ्यूजन में आ सकता है। ठीक है मानिक सर, 2 मिनट रिकॉर्डिंग अब बंद कर दीजिए। ठीक है, ओके। और रिकॉर्डिंग बंद होने के बाद जो बात बतानी थी वो ये कि हम लोग अभी 1-2 दिन कोशिश करेंगे प्रैक्टिस करने की